उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे आप। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट यू आर स्टेइंग एट योर होम एंड ट्राइंग टू लर्न with your subject teacher in online mode. Students, if you are staying at your home, definitely you have to follow the rules and regulations of the COVID-19. Okay, sanitize your hand, wash your face, wash your hand. Every rule should be very, very important for you. With this wish, let me introduce myself. This is Virendra, your information technology teacher, and I am here to give you the most important lecture on the Java programming. In today's video, what we are going to have, as you know that today's topic is assertion. Today's topic is assertion, and right now this is the one kind of series is going on for object-oriented programming. And in this, first of all, before beginning of this video, I just want to give you a warm welcome on my YouTube channel. For having a better understanding about this topic, assertion, okay, then we have to use the practical demonstration here. So I will give you the practical demonstration for this topic also, right? Whatever the theory classes is there, for theory classes, I will give you a little bit information about this, but in the live class. Okay, I am damn sure you are able to understand each and everything. Okay, so students, without wasting any of the time, let's come to my laptop screen to have the practical demonstration. Okay, and before coming to the practical demonstration, I am just going to write that what we are going to have in this practical demonstration. Okay, this is the thing we are going to have. Practical demonstration. Now students, stand to move. Okay, please come. Students, now I am going to start the class. In the last class you have watched about how to connect your database with Java NetBeans. So I am sure that you are able to understand that video also. In this video we are going to have a new topic. The new topic is Adarshan. Right? That's a very, very important topic here. And this topic, it belongs to advanced Java. When the session is going on, at that time we are having 3 topics from the advanced Java. Assertion, threads, that's the most important one. Then wrapper class. These things we are going to have this. So in this video we are going to have only assertion. So first of all we are going to have what is assertion. assertion होता क्या है? इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने PDF के सहारा लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं it is written here, the assertion is a very useful mechanism for effectively identifying, detecting and correcting the logical errors. Yes. देखिए होता क्या है कि जब आप अपने प्रोग्राम्स को बनाते हैं, उसको रन करते हैं आप, तो उस समय आपका जो एरर्स आते हैं केवल आपका सिंटेक्स एरर आते हैं आपके, जो आपको वहीं पर दिख जाएंगे, वहीं पर आपके सॉल्व हो जाएंगे। लॉजिकल एरर आपको दिखाई नहीं देते उस समय। रीज़न क्या है? रीज़न है आपका कि जो आपका लॉजिकल एरर है वो डिसेबल्ड होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसके लिए कि आप अपनी प्रोग्रामिंग की जो स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं उसमें एक चीज़ और आपको शामिल करना है, assertion statement. Yes, while developing the Java program, it is a good programming practice to have the assertion statement to debug your code. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने प्रोग्राम में assertion आप स्टेटमेंट को लिखेंगे तो आपके जो लॉजिकल एरर्स हैं वो भी आपको दिखेंगे। ठीक है, इसलिए उसको फिर आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सो यहाँ पे जितना भी हमने कुछ समझा, हमने बस इतना समझा कि assertion होता क्या है।
assertion is nothing but it's a one kind of mechanism which detect, identify and correct the logical errors. ठीक है, ये आपका हो गया assertion. अब हम देखते हैं assertion का सिंटेक्स क्या होता है. assertion का सिंटेक्स देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये assertion का सिंटेक्स है छोटा सा. आपको याद होगा एक बार मैंने आपको पुराने वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा रखा था इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, कि इफ़ उसके बाद कंडीशन लिखते थे, फिर उसके बाद जो ट्रू स्टेटमेंट है वो, और उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट है वो लिखते थे. तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जब आप लिखते थे तो आप देखिए किस तरीके से लिखते थे आप. मैं करके दिखा देता हूँ आपको. ये रहा आपका नोट पैड. आपने लिखा इफ, पैरेंथेसिस लगाया, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा a ग्रेटर देन 6 लिखा आपने, ब्रैकेट बंद किया, फिर यहाँ पे आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट उसके हिसाब से लिख दिया. जैसे A is ओके स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ पे लिखा A is bigger, यहाँ पे लिख दिया आपने A is bigger. ऐसे ही आपने कोई स्टेटमेंट लिख दिया. else लिखा, else के बाद एक और आपने लिख दिया यहाँ पर, यानी फॉल्स स्टेटमेंट लिखा. इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा इफ़ के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कंडीशन, कंडीशन के बाद थोड़ा स्पेस दे करके यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रू स्टेटमेंट, जो भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको C++ के हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैं, कि C++ में इस तरह का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फिर इसके बाद आपने यहाँ पर लगाया कोलन. ठीक है, और कोलन के बाद आपने लिखा यहाँ पर फॉल्स, और यहाँ पर इस जगह पर एक आपका लगता है क्वेश्चन मार्क. लगभग कुछ इस तरह का आपका सिंटेक्स होता है आपका. पैरेंथेसिस के अंदर केवल हम कंडीशंस को ही लिखते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो कुल मिला के आपने मतलब ये देखा कि यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तब तो आपको ट्रू स्टेटमेंट एज ए आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स स्टेटमेंट आपको आंसर मिल जाएगा. तो ये जो भी कुछ लॉजिक मैंने बताया, ये वो सेम लॉजिक आपका असर्शन में आपका इस्तेमाल होगा. ठीक है, असर्शन में दो तरह के तरीके होते हैं लिखने के. नंबर 1 असर्ट सिंगल स्पेस, जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं, और उसके बाद सेमीकोलन. दूसरा तरीका जो है आपका असर्शन. ठीक है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे असर्ट. ठीक है, कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे असर्ट, और उसके बाद एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे यानी कि ट्रू स्टेटमेंट, और कोलन लगाएंगे, उस पर लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर याद रहे असर्ट के बाद हम कंडीशन ज़रूर मेंशन करेंगे. ठीक है, कंडीशन जो मेंशन करेंगे, तो अगर आपका यहाँ पर कंडीशन मेंशन करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए. यहाँ पर असर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया. ये आपकी कंडीशन है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और यहाँ पर जो कंडीशन है वो लिखी गई है यहाँ पर, कि अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला है, ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला, ये क्या करेगा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन and throws the assertion error if expression is false. यानी कि अगर एक्सप्रेशन आपका ट्रू होता है तब तो किसी भी तरह का लॉजिकल एरर नहीं आएगा, assertion एरर नहीं आएगा. लेकिन अगर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा तो assertion एरर आएगा. ठीक है, इन द सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये वाला, दिस वन, द second statement evaluates expression 1 and throws the assertion error
with expression 2 as the error message if expression 1 is false। मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्टेटमेंट में दो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 के हिसाब से अगर कंडीशंस अगर फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पर जो भी कुछ प्रिंट आउट में आपने करने के लिए लिखा होगा वो आपका वहाँ पर प्रिंट आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पर अजर्शन एरर इस बार नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अजर्शन एरर नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिखा क्या है, एक तरह से लिखा है कि द सेकेंड स्टेटमेंट इवेल्युएट्स एक्सप्रेशन 1। जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वहाँ पर पहले ये चेक होगा कि एक्सप्रेशन 1, ठीक है, वो आपका चेक होगा। उसके हिसाब से अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कोई भी एजर्शन एरर नहीं आएगी, अगर ये फॉल्स हुई तो एजर्शन एरर आएगी। ये दो तरीके हैं, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में एजर्शन एरर आना कंपलसरी है अगर फॉल्स हो जाती है। दूसरे कंडीशन में आपका यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ही आपका एजर्शन एरर आएगा, ठीक है। तो दो ये सिंटेक्स थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अजर्ट एज ग्रेटर देन 18। अगर किसी फॉर्म को फिल कर रहे हैं आप और फॉर्म को फिल करते समय आपसे पूछा कि क्या आपकी एज 18 से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपने बोला येस, अगर आपने वहाँ 19, 20 कुछ भी पुट कर दिया तब तो वहाँ पर किसी तरह की कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आपने इनका 13 लिखा, यानी कि अगर कोई स्मॉलर किड कोई उसके हिसाब से एज आपने डाल दिया तो वहाँ पर लिखा आएगा एज इज़ नॉट वैलिड। ये आपका अजर्शन जो आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको मुझे एक ज़रूरी चीज़ बताना है इसके लिए। सिंस अजर्शन रिड्यूस द रन टाइम परफॉर्मेंस, सबसे बड़ा एडवांटेज है ये, सबसे बड़ा एडवांटेज है। आप अजर्शन की हेल्प से रन टाइम परफॉर्मेंस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप they are disabled by default, ठीक है। जब ये रन टाइम होगा तो आपका रन टाइम परफॉर्मेंस तो रिड्यूस करेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है ये, यानी कि डिसेबल होने की वजह से रन टाइम परफॉर्मेंस आपकी एज इट इज़ आपकी रहती है, कोई रिडक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये इनेबल कर दिया जाए, ठीक है, तो इनेबल करने से आपके यहाँ पर जो रन टाइम परफॉर्मेंस है वो अपग्रेड हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए तो हम किस तरीके से इसको हम अपग्रेड करें, हम चूँकि हम यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं GUI बेस्ड पे हम कर रहे हैं, नेटबीन्स का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो इसको कैसे हम करेंगे उस चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ। चलिए स्क्रीन को पहले अब मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं। अब मैं ओपन करूँगा जावा नेटबीन्स की स्क्रीन, और यहाँ पर छोटे छोटे दो प्रोग्राम्स मैंने आपके बनाए हैं। पहले प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर import java.util.scanner, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद अब मैंने एक क्लास बनाया। क्लास जब बनाया यहाँ पर उसका नाम रखा मैंने azert1, इसका नाम है azert1। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पर एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पर, ताकि मैं कंसोल से आपका इनपुट ले सकूँ, ठीक है। स्कैनर obj इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, फिर यहाँ पर एक लाइन मैंने प्रिंट किया इंटर एज, ठीक है, इंटर एज। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पर एज जो है मैंने इनपुट करवा लिया। तो नेक्स्ट इंट का मैंने इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट obj.next इंट, इसको मैंने स्टोर कर दिया एज में, एज को ही मैंने फिर प्रिंट आउट कर दिया। अब इसके पहले यहाँ पर इस जगह पर यहाँ देखिए जो मैंने एक स्टेटमेंट अजर्ट स्टेटमेंट लिखा है, कैसे लिखा है मैंने यहाँ पर पहले लिखा अजर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया। अजर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करने के बाद फिर मैंने यहाँ लिखा एज ग्रेटर देन 18, एज ग्रेटर देन 18। इसके बाद यहाँ पर मैंने कोलन लगाया, और कोलन के बाद मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहा, यहाँ मैंने लिख दिया एज इज़ इनवैलिड, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि आपने वैलिड एज नहीं डाला है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर रन करना चाहते हैं,
तो आपको यहाँ पर जो assertion है वो पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू enable your assertion. How we are going to enable this? Okay, let's have a practical demonstration for that. Right? How we are going to do that? First of all, select your project. I have selected by clicking one time. Then after I have to right click. After making right click, many options are came here. Then I have clicked on properties. In the properties window, many categories are there on the left hand side: source, library, build, run, application, license header, formatting, hints. इतनी सारी categories हैं. Out of these I have to select only run. Okay, I have to select only run. In this window, what you are able to do that you have to go to the VM option. VM means virtual machine option. और यहाँ पर आपको लिखना है -EA, E for enable, A for assertion, -EA. और बाकी सबको हम एज इट इज छोड़ देंगे. ठीक है. अब हम करेंगे ओके. फाइनली ये आपका सेव हो गया. ये इस समय आपका जो assertion है वो एक्टिवेट हो चुका है. और एक्टिवेट होने के बाद अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो आपके लॉजिकल एरर्स है वो डिस्प्ले होंगी आपकी. ठीक है. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे. ये आपका आउटपुट स्क्रीन है. थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरीके से. अब मैं करूँगा यहाँ राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल. चलिए वेट करते हैं आउटपुट का. Still it is taking little bit of time. चलिए अब हमसे पूछ रहा है ये एंटर एज. ठीक है. पहला हम काम करेंगे एंटर एज है हम डाल देते हैं. फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम 18 से ऊपर की एज को डालते हैं. जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर 19. जैसे ही मैंने 19 डाला और 19 डालने के बाद इंटर प्रेस किया, देखिए क्या होता है. इंटर्ड एज इज़ 19 और किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आया. ना कोई assertion एरर आया, ना कोई आपका सिंटैक्स एरर आया, कोई भी एरर नहीं आया. क्यों? क्योंकि जो आपने यहाँ कंडीशन लिखी है एज ग्रेटर देन 18, आपने जो कंडीशन लिखी है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रू हो जाती है. तो यहाँ पे ट्रू अगर होगा तो किसी तरह का कोई भी एरर नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पर देखना क्या है यहाँ पर कि असर्ट स्टेटमेंट लिखा, एक्सप्रेशन 1 में कंडीशन लिखा, कोलन लगाया और कोलन लगाने के बाद फिर आपने एक्सप्रेशन 2 को लिखा. ये एक्सप्रेशन 2 है ये, और ये जो देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन 1 है ये. ठीक है. चलिए अब एक बार और हम इसको रन करते हैं. रन फाइल मैंने किया. रन फाइल पे क्लिक करने के बाद अब हमसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पर अपनी एज को डालिए. तो अपनी एज को मैंने यहाँ डाल देते हैं. जैसे मैंने डाल दिया है यहाँ पर 14. इस बार देखते हैं क्या होता है. ये देखिए assertion एरर आ गई. इस बार क्या लिखा है देखते हैं एक बार. एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.assertion एरर, और यहाँ लिखा है एज इज इनवैलिड. जी, यानी कि जो आपका एरर आया है ये आपका एरर एक्सेप्शन आया हुआ है, assertion एरर. ठीक है. ये आपका एरर आया है assertion एरर. ओके. सो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि आपने क्या देखा है. यहाँ पर इसमें जो आपने देखा कि असर्ट स्टेटमेंट है, आपने वहाँ पर एक्सप्रेशन देखा. एक्सप्रेशन अगर फॉल्स होती है तो उसके हिसाब से कोई आपने दूसरे एक्सप्रेशन को प्रिंट करा लिया ताकि assertion एरर ना आए. तो हो क्या रहा है यहाँ पर, लॉजिकल एरर को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है. ठीक है. और उसको फिर करेक्ट किया जा रहा है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. और अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने एक और छोटे से प्रोग्राम में. ठीक है. और उस छोटे से प्रोग्राम में हम उम्मीद करेंगे कि आपको बाकी चीज़ समझ में आ जाए. ठीक है. ये रहा छोटा सा प्रोग्राम. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप कि सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास बनाया गया है.
ठीक है, एक यहाँ पर क्लास बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लास बनाने का तरीका है जो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से, देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक मैंने क्लास बनाया, क्लास का नाम रखा मैंने यहाँ पर पब्लिक क्लास अजल्ट 2, पब्लिक क्लास अजल्ट 2, ये क्लास का नाम है। अब इसके बाद आपने यहाँ मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट से ओपन किया, और आपने अब एक आपने अजल्ट 2 जो आपने क्लास एक आपने बनाया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने अजल्ट 2 बी इक्वल टू न्यू अजल्ट 2, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये आपका न्यू ऑपरेटर हो गया स्पेस एलोकेशन के लिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्लास का नाम है, ठीक है। आपको पहले से बताया जा चुका है कि जो क्लास का नाम होता है वही आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने एज 1 एक मेथड बना रखा है, उसको मैंने एक्सेस कर लिया, और वहाँ मैंने पास कर दिया 160, ठीक है। तो मैं आपको इसको भी रन करके दिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है ये। अच्छा, अब आपको यहाँ ये बताना है कि जो एज 1 जो आपका मेथड है, एज 1 इस मेथड में क्या है, एज 1 जो मेथड है इस मेथड में क्या है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और हम क्लास बनाएंगे, लिखेंगे पब्लिक के बाद अब हमें यहाँ पर जो मेथड का टाइप बताना है, जो रिटर्न टाइप लेना है, बूलियन लेना है हमें यहाँ पर, तो मैंने लिखा बूलियन, और एज 1 जो आपका मेथड का नाम है, ब्रैकेट के अंदर मैंने इंट एज लिख दिया है, ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया है इंट एज, ठीक है। एक मैंने पैरामीटर यहाँ पास कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर कि यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर क्लास बनाया जो कि बूलियन टाइप का है, ठीक है। उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो बूलियन टाइप की होंगी, और यहाँ पर मेथड को डिक्लेयर करने के बाद अब आपने अजल्ट स्टेटमेंट लिखा, मेथड को डिक्लेयर करने के बाद अजल्ट स्टेटमेंट लिखा, और अजल्ट आपका पहले कीवर्ड होगा, देन आफ्टर आपने कंडीशन लिखी जो एक्सप्रेशन 1 है आपका, मैंने लिखा एज लेस देन 150, ये लिख दिया मैंने, आपका यहाँ कंडीशन लगा दी। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एक्सप्रेशन 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिखा है मैंने इंटर्ड एज इज़, ठीक है, प्लस एज कर दिया यहाँ पर, जैसे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखते हैं आप, बिल्कुल वैसे ही लिखा है मैंने यहाँ पर कि अगर यहाँ पर जो आपने एज इंटर्ड किया है अगर वो फॉल्स होता है अगर, तो आपको ये प्रॉम्प्ट आपको दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पर कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 0 तो ट्रू रिटर्न करे और अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करे, ठीक है। ये आपका कंडीशन हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है यहाँ पर कि हमने इस प्रोग्राम में जो मेन लॉजिक है वो क्या है। यहाँ पर मेन लॉजिक है आपका यहाँ पर कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि जो इंटर्ड एज है क्या वो 150 से कम है क्या, ये हमें चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। अगर कम है, अगर एज कम है तब तो किसी तरह की कोई भी एरर नहीं आएगी, ट्रू आ जाएगा सिंपली, और अगर यहाँ पर फॉल्स होती है तो आपको कोई एरर प्रॉम्प्ट आपको दिख जाए यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब बारी आती है इसको रन करने की। तो रन करने में अब आपको मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल, ओके, जस्ट डू द रन फाइल एंड वेट फॉर योर रिजल्ट। सी देयर इज़ अ assertion error, reason because you have passed 160, and this kind of error is already coming in the last program also, assertion error, okay. So it means that right now Azure is trying to identify the logical error, what logic you are giving, okay. If error is coming, that is easily identified,
ओके। और आपको पता है कि java.lang ये जो आपका पैकेज है हर प्रोग्राम में इंक्लूड होता है, आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें हज़ारों तरह की क्लासेस हैं, ठीक है। हर क्लास का कोई ना कोई फंक्शन है, हर उसके अंदर मेथड्स आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर असर्शन एरर है वो भी आपका पहले से एक मेथड बना हुआ है जो आपको ये बता रहा है कि ये आपने लॉजिकल एरर यहाँ पर किया है, ठीक है। चलिए काम करते हैं यहाँ पर कि ये जो वैल्यूज़ हैं इस वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं और कम करके देखते हैं क्या एरर आती है या नहीं आती। मैंने कर दिया है 80 के बाद अब हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल पे जाते हैं। रन फाइल पे मैंने क्लिक किया, वेट करते हैं। अब स्टिल इट इज़ टेकिंग अ टाइम। सी किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं आया है। सिंपल आपका यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो आपका यहाँ पर बस दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा केवल और केवल फॉल्स कंडीशन पे ही आपको मिल रहा है, ठीक है। केवल अगर आपने कंडीशन फॉल्स की तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। इस बार देखिए किसी तरह की कोई भी लॉजिकल एरर नहीं आई, ठीक है। तब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पर, केवल आप बस एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप कि जब कभी भी आप असर्शन का इस्तेमाल करेंगे तो असर्शन का इस्तेमाल करते समय जितनी भी लॉजिकल एरर हैं वो लॉजिकल एरर आपको असर्शन ही ढूंढ के आपको देगा, ठीक है, एरर प्रॉम्प्ट कर देगा। अब आप जब आपको लॉजिकल एरर मिल जाएगी उसके बाद आप उसका करेक्शन कर लेंगे अपने प्रोग्राम के ज़रिए आप, ठीक है। Okay students, now we are going to have one of the point here that if we are thinking about that why we are studying the assertion, then what will be the answer? Do one thing, just use your YouTube comment box and give your answer, right? If your answer matches with my answer, it means you are eligible for the like from my side, okay. So let me tell you the answer. Suppose you have created any kind of system. Are you sure that your system is purely and 100% correct, 100% working fine? It is 100% tested? I think at that time you are not able to sure 100% आप टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो वहाँ पर जब टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे तब आपको इस तरह के जो असर्शन के लॉजिक्स हैं वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं हम। Whenever any kind of production application is running and you are having some kind of strange data, okay, then at that time may not be used for the testing. If you are having some kind of strange data, then definitely you are not able to use in the production application. कि आपके पास अगर प्रोडक्शन एप्लीकेशन में कुछ नया चीज़ आपको मिलता है तो नई चीज़ को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आप अनभिज्ञ हैं, नहीं जानते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पर फिर आपको लॉजिकल जो आपको यूज़ करना पड़ेगा वो आपका असर्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो आपको फाइंड आउट करके बताएगा आपको वो स्ट्रेंज डेटा क्या है, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 था। ये पॉइंट नंबर 3 में आते हैं हम। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वाई द सिनेरियो फेल्स। हमें ये भी देखना है कि जो आपका सिनेरियो है, जो अनवांटेड सिचुएशंस हैं वो क्यों आई हैं, तो आपको असर्शन वो आपको सोच करके बताएगा ये, ठीक है। ये तीनों चीज़ मैंने बताया है कि जब आप रियल टाइम में अपने एप्लीकेशन को बनाएंगे या प्रोडक्शन पर्पज से तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको असर्शन इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इन केस आपके पास कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे या कॉन्टेक्ट करें आप, ओके। So students, I hope you are able to watch each and everything. You have not skipped any of the part of this video. So students, I am damn sure you are able to understand each and everything what is trying to deliver in this video. But students, make sure that you have to do the practice for the same on your laptop as well as on your mobile also. Right? So students, right now I just want to say thank you so much for watching the complete videos and your YouTube comments giving lots of motivation to me. Okay students, so once again thanks a lot.